Assalamu alaikum. A very good evening to everyone. This is Faisal Nadeem from AMP, Association of Muslim Professionals. A very warm welcome to everyone. Today we are here for AMP Free Employability Training Program, and topic for today is interview skills. Now I would do a short presentation about the AMP. AMP India Foundation is a non-for-profit organization registered under Section 8 of the Companies Act 2013, Government of India, for providing voluntary social service to meet the needs of underprivileged individuals, that is upliftment of underserved needy and through educational and vocational training, employment support, medical relief, economic empowerment, student mentorship and guidance. The above services are provided to needy individuals irrespective of caste, creed and religion. Employment Assistance Cell, keeping in mind of AMP core objective of supporting the underprivileged, promoting education and creating economic empowerment, AMP had launched a special project named Employment Assistance Cell, and today it is one of the core projects of AMP. Our major EAC activities include job fairs, job drives, employability training programs in colleges, skill training company tie-ups, candidate mobilization, skill development courses. Job fairs. Job fair is one of the flagship projects of AMP, and we have successfully organized 43 plus job fairs till date. Every job fair has a participation of minimum 50 companies and 2,000 plus candidates. AMP has organized job fairs in the past in collaboration with Thane Police, Aurangabad Police, West Bengal Minority Finance Development Corporation, Andhra Pradesh State Minorities Finance Corporation, and other reputed NGOs. Job drives. Job drives are similar to job fairs, but organized on a much smaller scale compared to job fairs. In a job drive, we typically invite only up to 2 to 3 corporates who have specific openings and advertise their openings profiles in order to attract suitable candidates. Employability Training Program. ETP is developed by the AMP to assist job seekers find the right job at the right place at the right time. We team up with the colleges in different cities and conduct ETP program online as well as offline. Our training programs will cover the following. Some of the topics are personality development, effective CV writing, interview techniques, job searching strategies. It aims to create awareness and groom young graduates who are aspiring to be professionals. Skill training company tie-ups. AMP has partnered with reputed skill training companies like Tata Trust, Whirlpool, Tech Mahindra Foundation, etc. We have also arranged skill training melas in Mumbai by inviting around 20 skill training companies to hire and train unskilled candidates who could not pursue their higher studies after 10th and 12th standard. Candidate mobilization. AMP has mobilized candidates for various skill development courses like home appliance technician, AC technician, mobile repairing technician, and solar engineering under Skill India Mission in centers all across India. Our achievements: employment assistance, 43 plus job fairs, out of which 9 online job fairs, 275 plus job drives, out of which 20 online job drives, 220 plus employability training programs, out of which 37 online ETPs, 100 plus mock interviews in colleges, 25,000 plus candidates placed in jobs. Career Fest, organized 6 career fest, benefited 1,50,000 plus students. Our new initiative, empowerjobs.com, connecting right talent with the right opportunity. Empowerjobs.com was launched on 6 December 2020. It is a unique job portal with comprehensive offerings introduced by AMP India Foundation for job seekers, especially those hit by the COVID pandemic. Thank you, everyone. Now I would like to introduce the topic for the trainer for the today, Mr. Shahid Masood sir. Shahid Masood sir is an HR professional, pass out from ZIPS Ranchi. He has a professional experience of around 22 years and have worked for Aditya Birla Group, Tata Motors, Reliance Communication, Tata Docomo, Balrampur Chini Mills, etc. He belongs to Darbhanga, Bihar, and presently based out of Patna. Thank you, everyone. Now I would like to hand over the session to Shahid Masood sir for the thing. Thank you, sir. Assalamu alaikum and good evening to all. देखिए मेरे ख्याल में मैं ये सेशन मिक्स्ड इंग्लिश और हिंदी में लूँगा. मेरे ख्याल में ये दोनों जानने वाले होंगे. ये टॉपिक जो है इंटरव्यू स्किल्स, शाहिद साहब आवाज़ पूरी आ रही है ना? Yes sir, you are audible. जी आ रही है. तो ये बेसिकली नॉर्मली फुल डे सेशन होता है या फिर एटलीस्ट हाफ डे सेशन, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना वक्त मिला है उसमें मेन क्रिटिकल पॉइंट्स से उसको कवर करें, ताकि आप लोगों को जो जॉब ड्राइव होने वाला है या आने वाले वक्त जो आपको इंटरव्यू होने वाला है उसमें आपको इससे फ़ायदा पहुंचे.
देखिए, अगर हम इंटरव्यू, हम आप सबने सब सुना होगा, हमने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इंटरव्यू दिया होगा। बहुत तरह का इंटरव्यू होता है। कभी किसी लड़की को इंटरव्यू देना पड़ता है शादी के लिए, कभी किसी नेता को इंटरव्यू देना पड़ता है, जर्नलिस्ट को। कभी हमें और आपको ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देना पड़ता है। तो हम सब इंटरव्यू जानते हैं। बेसिकली अगर हम हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का डेफिनेशन जाने तो ये इंटरेक्शन है बिटवीन टू पीपल और वन एंड ग्रुप ऑफ द पीपल, बेसिकली जिसको आप हम पैनल भी बोलते हैं। और अगर आप मेरा हेडिंग देखेंगे इस स्लाइड का, तो मैंने लिखा है इट इज बेसिकली अ माइंड गेम। अगर हम ये सोचते हैं कि ये साइंस है या कोई रॉकेट साइंस, ऐसा कुछ नहीं, इट इज बेसिकली एन आर्ट। और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं, आप इसमें आपकी एक्सपर्टाइज होती है। आप एग्जाम्पल ऐसे ले लें कि मान लीजिए कि आपने फार्मूला वन कार खरीद लिया, और आपको नॉर्मल टाटा की गाड़ी चलाने की आदत है या मारुति की गाड़ी चलाने की आदत है, और आप जब फार्मूला वन पे बैठ जाएंगे तो आप नहीं चला पाएंगे। तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आपको एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप फार्मूला वन कार चला पाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, ये जो मैंने लिखा है कॉमन रिफ्लेक्सेस ऑन इंटरव्यू, आपके पास जब इंटरव्यू के लिए कॉल आते होंगे, ये किसी भी लेवल पे है, ये ऐसा नहीं है कि आप अगर फ्रेशर हैं या 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है तब आप नर्वसनेस फील करते हैं। इट इज़ एट ऑल लेवल। डिफरेंस ये होता है कि जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं अपने प्रोफेशन में, वैसे वैसे आपकी एक्सपर्टाइज होती है और नर्वसनेस कम होती जाती है, क्योंकि आप उस फील्ड के आदी होते जाते हैं। तो नॉर्मल जो रिफ्लेक्सेस इंसान का होता है, वो जब आप इंटरव्यू कॉल आता है और व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, आप नर्वसनेस फील करते हैं, डर लगता है। अक्सर ऐसा देखा होगा आपने कि आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा, आप फंबल करेंगे, पसीना छूटने लगेगा, या बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ेगी। खुशी का भी एहसास, ये मिक्स्ड फीलिंग्स होती है। आप कितना उसको कंट्रोल कर पाते हैं, एक्चुअली दिस इज एन आर्ट। दैट इज द रीजन आई हैव टोल्ड रिटन इन द फर्स्ट लाइन दैट इज द माइंड गेम। और माइंड गेम इसलिए भी मैंने लिखा है कि ये सिचुएशन बेस्ड है बेसिकली। आप अगर एनालाइज करेंगे अपने जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो अगर आप जॉब में रहते हुए इंटरव्यू देते हैं तो आपका माइंड सेट कुछ और होता है। आप अगर जॉबलेस हैं तब इंटरव्यू दे रहे हैं, तब आपका माइंड सेट कुछ और होगा। आप अगर होम टाउन के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तब आपका माइंडसेट कुछ और होगा। आप अगर हायर सैलरी के लिए दे रहे हैं तो कुछ और होगा। ये सारा बेसिकली जहन का गेम है, दिमाग का गेम है। आप कितना अपने दिमाग को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई हर्ड दैट यू आर हैविंग योर इंटरव्यू ऑन 16। आई एम श्योर कि आप आज पूरा दिन आपके जहन में ये घुमा हो कि कल अगर इंटरव्यू होता है तो कैसे पूरा एक सीन क्रिएट होता होगा। जैसे आपने देखा होगा, जब किस कहीं पे कोई वारदात होता है तो उसको सीन को रिक्रिएट करते हैं लोग, पुलिस वाले, या इसी तरीके से हम अपने आप में दिमाग में हमारा वो पूरा सीन क्रिएट होता होता है। एक एनोनिमस प्लेस पे हम जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, पैनलिस्ट में लोग बैठे हैं, दे आर आस्किंग क्वेश्चन एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग। ये सारा उठते बैठते सोते जागते कहीं भी आप जा रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, ये पूरा सीन क्रिएट होता है एंड यू मेक योर आंसर्स। तो ये बहुत कॉमन है। तो ये आपको जितना आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इसमें स्टडी करेंगे, जितनी आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ती जाएगी वक्त के साथ साथ, उसमें आप बेटर इंटरव्यू दे पाएंगे। देखिए, सिचुएशन बेस्ड अगर आप लीजिए तो सिचुएशन बेस्ड दो तरह का इंटरव्यू होता है। एक वो इंटरव्यू जो फॉर द सेक ऑफ टेकिंग इंटरव्यूज ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, जैसे कि बहुत जगह पे होता है कि उनकी पर्सनल पॉलिसी है कि आपको ये पोजीशन क्लोज करने के लिए आपको इंटरव्यू लेना ही लेना है। टू शो द मैनेजमेंट वो इंटरव्यू लेते हैं, जबकि बंदा फिक्स होता है। बहुत जगह पे ऐसा होता है, ऐसे सिचुएशन जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे कि मान लीजिए बायस्ड है इंटरव्यूअर, या मान लीजिए कि इंटरव्यू कहीं से झगड़ के आया है और वो इरिटेट हो रहा है और आप ऐसे पैनल में पड़ गए हैं जो बंदा इरिटेटिंग है। दोज थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। लेकिन हम उस सिचुएशन की बात करेंगे जहां पे आपके कंट्रोल में आपका इंटरव्यू है। ये जो मैंने 4C लिखा है, बेसिकली ये मेरे पूरे इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है और जो मैंने कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया है, इन 4C में बेसिकली मैंने उनको डालने की कोशिश करी है। और ये 4C अगर आप अपने प्रैक्टिस में इसको जितना ज़्यादा करेंगे, उतना आप एक्सपर्टाइज बढ़ेगी या आप बेटर इंटरव्यू दे सकते हैं। द फर्स्ट सी इज योर कॉन्फिडेंस। अक्सर मैंने ड्यूरिंग इंटरव्यू देखा है कि आप बहुत अच्छे नॉलेजेबल बंदे हैं,
आप जानकार हैं अपने सब्जेक्ट के, कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आप यू लैक द कॉन्फिडेंस। और अगर आप कॉन्फिडेंस लैक कर गए तो बाकी जो 3 C है वो आपके लिए बेकार है। तो फर्स्ट थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज योर कॉन्फिडेंस, योर कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल, बहुत से लोग ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंट होनी चाहिए, अंग्रेजी में फ्लुएंसी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, इट इज बेसिकली कि वट एवर यू वांट टू कम्युनिकेट, आप जो बोलना चाहते हैं सामने वाला अगर उसको समझ रहा है, दैट इज कम्युनिकेशन। सामने वाला अगर साउथ इंडिया का है और आप उसको हिंदी बोल रहे हैं तो बेकार है। साउथ इंडिया वाला इंग्लिश बोल रहा है और हमारे मान लीजिए बिहार के कोई गांव का बच्चा है जो नहीं समझता है तो वो भी बेकार है। तो कम्युनिकेशन बेसिकली, कम्युनिकेशन स्किल वो है कि वट एवर यू वांट टू स्पीक, द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू अंडरस्टैंड। इसमें एक बहुत क्रिटिकल चीज मैंने देखा है, बेसिकली द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड, कि इंटरव्यूअर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है और आप यू आर रिस्पॉन्डिंग इन हिंदी, और the person who is very smart or whose communication is very good or whose English is very good, the person is asking question in Hindi and he's responding in English. तो ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन आपसे जिस लैंग्वेज में पूछा जाए, आइदर वो इंग्लिश में पूछेंगे हिंदी में पूछेंगे, नॉर्मली इंडिया में ऐसा ही होता है, आइदर इंग्लिश में पूछते हैं या हिंदी में। और आपसे अगर इंग्लिश में पूछा जा रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में जवाब दीजिए, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर हिंदी में पूछा जा रहा है तो हिंदी में जवाब दीजिए। दूसरा जो बहुत क्रिटिकल चीज है वो है कमांड ऑन द सब्जेक्ट। आप अगर किसी एफएमसीजी कंपनी के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पीएनजी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या स्विगी के लिए जा रहे हैं, जोमेटो के लिए जा रहे हैं, आपने क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है, सेल्स का बेसिक नॉलेज आपको है, एफएमसीजी का फुल फॉर्म क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रेशर्स के लिए बात कर रहा हूँ, आप एफएमसीजी में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, इन ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, रिटेलर क्या होता है, ये सारी चीजें क्या आपने सब्जेक्ट के बारे में बेसिक पढ़ा है। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आप जवाब क्या देंगे। इसी तरीके से इट इज एट ऑल लेवल, आप जैसे ऊपर सीनियरिटी पे जाएंगे अपने सब्जेक्ट पे आपको कंट्रोल बहुत जरूरी होगा। आप एक सवाल का जवाब ना बोल सकते हैं, 2 सवाल का जवाब ना बोल सकते हैं, लेकिन अगर तो इंटरव्यूअर सामने वाला ये कहेगा कि एवरी टाइम यू आर रिस्पॉन्डिंग इन आप नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं यार, यू आर टेलिंग दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ, दैट मीन्स फिर आपका पहले ही रिजेक्शन हो गया। एंड थर्ड पार्ट, वेरी क्रिटिकल, इज योर कमिटमेंट टुवर्ड्स द जॉब यू आर गिविंग द इंटरव्यू। आपके हर रिस्पॉन्स में वो कमिटमेंट शो होना चाहिए कि यस, आई एम हियर फॉर द इंटरव्यू, आई एम हियर फॉर द सिलेक्शन। और वो कमिटमेंट आपको तभी आएगा जब बाकी चीज़ें भी आपके में कॉन्फिडेंस होगा, कम्युनिकेशन होगा, कमांड। डोंट गो फॉर द इंटरव्यू ओनली फॉर द सेक ऑफ गोइंग फॉर द इंटरव्यू, या सिर्फ हमें ये दिखाना है कि मैं जा रहा हूँ, इंटरव्यू कॉल आया, मुझे जाना है। आप अपना भी वक्त बर्बाद करेंगे सामने इंटरव्यू के बाद। और इंटरव्यूअर इतना स्मार्ट होता है कि वो आपको समझ जाएगा जो सामने बैठा हुआ है, यू आर नॉट हियर फॉर द सिलेक्शन, आप यहाँ पे इंटरव्यू देने नहीं आए हैं, आप यहाँ पे टाइम पास करना है। इसलिए आप जब भी आपका वो ईगरनेस, आपका वो इंटरेस्ट शो होना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। ये 4 चीज़ों को आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पीपल हु आर फ्रेशर्स। अगर आप अंडर ग्रेजुएट्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं और आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, इन 4 चीज़ों पर प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा मैं इस चीज़ पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि ड्यूरिंग माई लास्ट 3-4 ऑर्गेनाइजेशन आई हैव सीन, जो रूरल बैकग्राउंड के होते हैं उनका बाकी 3 चीज़ बहुत अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, कमांड होता है, लेकिन उनका कम्युनिकेशन स्किल की वजह से उनका रिजेक्शन हो जाता है। अब ये बात भी इंटरव्यूअर को समझना चाहिए कि बेसिकली कम्युनिकेशन जो है वो आपके कॉम्पिटेंस को शो नहीं करता है। क्योंकि आप मान लीजिए कि somebody is taking इंटरव्यू इन इंग्लिश, वो इंग्लिश आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी नहीं है। नॉर्मली 90% ऑफ टाइम इन इंडिया वी टॉक इन हिंदी, लेकिन इंटरव्यू वो इंग्लिश में लेते हैं। तो अगर इंटरव्यू इंग्लिश में लेते हैं तो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने दोस्तों का एक पैनल बनाइए, आप उनसे किसी को इंटरव्यूअर बनाइए, आप एक इंटरव्यूई बन के एंटर कीजिए, फाइल लेके एंटर कीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बहुत से इंस्टीट्यूट आजकल इसका प्रैक्टिस कराते हैं लास्ट सेशन, लास्ट सेमेस्टर में। आपको ये प्रैक्टिस की जरूरत है, आप तभी कर पाएंगे जब आप बार 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 इस चीज को करेंगे। मॉक इंटरव्यूज इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू हैव दीज ऑल 4 C's। तो मॉक इंटरव्यूज कीजिए अगर आप फ्रेशर हैं, और फिर वक्त पे जब आप एक्सपीरियंस जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे खुद आने लगेंगी। लेकिन मेरा
आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक ग्रुप में हैं या किसी इंस्टीट्यूट में हैं या आप 2 4 5 साथियों के साथ रहते हैं तो प्लीज हैव द मॉक इंटरव्यूज। ये बहुत क्रिटिकल स्लाइड मैंने बनाया है। ये एक्चुअली मेरे पिछले 22 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ है, जो मैंने देखा है कि लोग लैग करते हैं और विदाउट प्लानिंग इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें का फुल डे सेशन का है। जैसे कि मान लीजिए मैंने रिज्यूम लिखा, आई एम श्योर कि एमपी ने कभी ना कभी रिज्यूम मेकिंग का जरूर सेशन किया होगा कि रिज्यूम कैसा होना चाहिए। ये अपने आप में एक ट्रेनिंग सेशन है। लेकिन आपका रिज्यूम बहुत लंबा, बहुत शॉर्ट नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम मेरे अपने हिसाब से 2 3 पेजेस का रिज्यूम होना चाहिए और स्ट्रक्चर्ड रिज्यूम होना चाहिए। आप बिलीव मी, रिज्यूम इज 70% ऑफ योर सिलेक्शन। अनलेस आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के, चूंकि मैं एचआर में हूँ तो मुझे पता है कि नॉर्मली मैं शॉर्टलिस्ट नहीं करता हूँ रिज्यूम को। नॉर्मली मेरी जो टीम होती है वो शॉर्टलिस्ट करती है। तो अगर कोई अच्छा बंदा है और मेरे तक वो रिज्यूम ही नहीं पहुंच पाएगा तो मैं आपको इंटरव्यू कैसे लूंगा। तो आपको शॉर्टलिस्टिंग ऐसी होनी चाहिए, आपके रिज्यूम में इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि आपका एटलीस्ट शॉर्टलिस्टिंग में आप पहले आ जाए, तभी आप इंटरव्यू बोर्ड तक आप पहुंच पाएंगे। इसमें रिज्यूम में 2 3 चीजें जिसमें मैंने लिखा नहीं, लेकिन बहुत क्रिटिकल चीजें ऐसी हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो ये है कि आप रिज्यूम को बहुत क्लमजी मत बनाइए, बहुत ही सिंपल रिज्यूम रखिए। और स्पेशली इफ इट इज सेल्स ओरिएंटेड और इफ द पर्सन इज फ्रॉम फिनांस, कोशिश कीजिए कि डेटा ओरिएंटेड रिज्यूम हो आपका। यानी कि आपने पिछले ऑर्गेनाइजेशन में कितने करोड़ का, कितने लाख का बिजनेस दिया, कितने वर्टिकल्स को आप हैंडल करते थे, रिटेलर्स कितना था, डिस्ट्रीब्यूटर कितना था, आपके मेन मेन कम्पिटिटर्स कौन थे, आप अपने बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले गए। ये चीज आपके फ्रंट पेज पे शो होना चाहिए ताकि वो एक अट्रैक्शन होता है, आपके कॉम्पिटेंस का पता चलता है कि आपने अपने बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले गए। और आप उस चीज को स्पेशली सेल्स के बंदों के लिए कि आप सेल्स में हैं, जानकार हैं और सेल्स के बारे में आपकी पकड़ है। एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी आप जो भी चीज आप अपने रिज्यूम में लिख रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। ओनली फॉर द सेक ऑफ राइटिंग अ गुड रिज्यूम आपने नेट खोला और नेट से जार्गन्स निकाल के अपना रिज्यूम बना ले, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। आप वही चीज लिखें जो आप जानते हैं। आप जाने के पहले अपने रिज्यूम को रिव्यू करें। आप जाने के पहले अपने दिमाग में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस, उसको जॉट डाउन करें, उसका प्रैक्टिस करें। इफ रिक्वायर्ड यू राइट डाउन द आंसर्स एंड देन प्रैक्टिस। इफ रिक्वायर्ड यू जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप उस पे क्वेश्चंस आंसर अपने आप में करेंगे, जैसे मैंने कहा एक मॉक इंटरव्यू इज अनदर सॉल्यूशन। आप अपने आप का ही प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करें, जितने क्वेश्चंस आप लिख पाएंगे, ऑब्वियसली कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड तो इंटरव्यूअर आते नहीं। इंटरव्यूअर तो आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो आप जितना प्रैक्टिस कर सकें, हो सकता है कि वो मैच कर जाए आपके आंसर से। तो ये जरूर करें कि आप क्वेश्चन के अपने जो प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आते रहते हैं। आई एम श्योर जब आप टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, सो रहे हैं, लेट रहे हैं, तो आपके दिमाग में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, अरे ऐसा हो सकता है कि वो पूछ ले। तो एक रफ पेपर हमेशा एक नोटबुक रखिए, उसमें नोट डाउन कर लिया कीजिए एंड देन यू राइट द आंसर एंड अकॉर्डिंगली आप आंसर दिया कीजिए। थर्ड वेरी क्रिटिकल पॉइंट इज फॉर द कंपनी फॉर विच यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, उसके बारे में रिसर्च जरूर कर लीजिए नेट से। वो बंदे का टर्नओवर, उस कंपनी का टर्नओवर कितना है, उस कंपनी का मेजर कंपटीटर कौन कौन सा है, वो क्या सेल करता है, उसकी यूनिट्स कहाँ कहाँ पे है, उसकी फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ पे है, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। जितना आपको नॉलेज मिल सके इंटरनेट से उतना कर लीजिए। नॉर्मली कभी कभी जानने के लिए, आपका जी के जानने के जनरल नॉलेज के, आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ के आए कि नहीं आए, वो क्वेश्चन कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। आप बोलेगा सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आई जस्ट गॉट द इंटरव्यू लेटर सो आई केम टू द इंटरव्यू। ये नेगेटिव आंसर हो जाएगा। आप जरूर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ के जाएं। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बता लें। फिफ्थ क्रिटिकल पॉइंट इज, आप कोशिश कीजिए कि 30 मिनट पहले आप अपने वेन्यू पे पहुंच जाएं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर फौरन आए और सांस खुली हुई है आपकी और आप आके सीधा इंटरव्यू बोर्ड, आपका कॉल आ गया और आप अंदर चले गए, तो आपकी जो आप प्लानिंग करके आए, जो आप सोच के आए, वो आप इंटरव्यू में नहीं बोल पाएंगे। सिक्स पॉइंट इज, ये बहुत क्रिटिकल है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों का रिजेक्शन मैंने खुद इस बेसिस पे किया है
कि उनका अटायर सही है या कपड़े उनके सही नहीं है। कपड़े डजेंट मीन कि बहुत कॉस्टली आप कोई ब्रांडेड शर्ट पहन कर आ रहे हैं या बहुत ही कोई कॉस्टली कपड़ा पहन कर आ रहे हैं। लेकिन अब अगर आप टी शर्ट पहन कर आ रहे हैं जिसपे कुछ लिखा हुआ है सामने में, हिट मी किल मी, वो टी शर्ट अगर आप आ रहे हैं तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू गेट सेलेक्टेड। तो अवॉइड कीजिए ऐसे अटायर को और डिसेंट डिसेंट कपड़ा पहन कर आइए। मैं हमेशा अपने जब मैं सेशन लेता हूँ या कभी मैंने अपने कैंपस में गया हूँ, हमेशा ये बोलता हूँ कि इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन टाई, डोंट बी अ टाई। टाई कहीं पे भी इंडिया में नॉर्मली बहुत कंपलसरी नहीं है कि आप टाई पहन के जाइए। हो सकता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हो जो कि कंपलसरी करते हो, ये अलग बात है। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है कि आप अगर टाई पहनते हैं और आपका गला मुस्तकिल अगर दबा हुआ है तो आप अनईजी फील करेंगे और फिर आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे इंटरव्यू करने में। तो जो अटायर आपको सूट नहीं कर रहा है, अटायर इन द सेंस ऑब्वियसली आप अगर शर्ट सूट नहीं कर रहा है कुर्ते पजामे में तो आप आएंगे नहीं, तो वो आपकी मजबूरी है। बहुत जगह मैंने ये भी देखा है कि आप स्पोर्ट्स शू में आ जाते हैं, बच्चे स्पोर्ट्स शू में आ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप लेस वाले शूज पहने या एटलीस्ट ब्लैक शूज पहने। ये एक नॉर्मल अटायर है जो कि इंटरव्यू में एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट इन इंडिया। अदरवाइज अगर आप इंडिया में ही बहुत मल्टीनेशनल और बीपीओस को देखेंगे तो वहाँ पे शॉर्ट्स में भी लोग ऑफिस आते हैं। दैट इज अनदर थिंग। आप जब ज्वाइन कर लेंगे वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का कल्चर अगर ऐसा होगा तो आप उसमें रह सकते हैं, बट व्हेन यू आर कमिंग फॉर द इंटरव्यू यू कांट कम इन शॉर्ट्स और चप्पल में या स्लीपर्स में आप नहीं आ सकते हैं। तो एक वो डिसेंट आपका अटायर जरूर होना चाहिए। थर्ड चीज, सेवंथ चीज जो कि अक्सर मैंने देखा है कि कैंडिडेट से मांगे भाई अपना रिज्यूम दिखाओ, बोलते सॉरी सर वो तो मुझे था, पता था कि आपके पास तो होगा ही, इसलिए मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ। ऑलवेज कैरी अ रिज्यूम, अपडेटेड रिज्यूम विच यू हैव सेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अ फोटोग्राफ। ठीक है, हमेशा अपना एक आप फोल्डर, एक अच्छा सा फोल्डर लें। आई हैव सीन पीपल के पॉकेट से मुड़ा हुआ रिज्यूम निकाल के सामने बढ़ाते हुए, गोल है गोल बढ़ा दिया कि भाई सर ये रिज्यूम है मेरा। वो पहला ही इंप्रेशन आपका नेगेटिव हो जाएगा और सिलेक्शन के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। व्हाइल वेटिंग फॉर योर टर्न डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ये आपको डिमोटिवेट करेगा। आप जितना अपने सामने में दूसरे को दिखेंगे, बंदा टाई में बैठा है, किताब खोल के पढ़ रहा है, दोनों दो डिस्कशंस कर रहे हैं, कुछ भी ध्यान मत दीजिए, अपने आप में रहिए, कूल काम कंपोज रहिए और ये बिलीव करके चलिए कि आप कामयाब होंगे। नेगेटिव थॉट्स को मत आने दीजिए। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको ये बताऊं कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं, स्पेशली मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ। सेल्स में बहुत एक क्रिटिकल चीज है जो कि आपको पेशेंस है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं काम करता था तो वी वर सिलेक्टिंग सेल्स पीपल। तो हमने उनको फर्स्ट हाफ में बुलाया एंड फॉर अराउंड 3-4 डेज हम कंटिन्यूस इंटरव्यू ले रहे थे। हमने फर्स्ट हाफ में बुलाया एंड वी टुक इंटरव्यू एट अराउंड 4 and 5 इन द इवनिंग। और हम कंटिन्यूस उनको कैमरा से वॉच कर रहे थे, उनके नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को, वो क्या बात कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, क्या फ्रस्ट्रेशन है उनके इसमें। and we rejected those people who were frustrated because they were waiting in the waiting hall. सेल्स में ये बहुत जरूरी है कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए। और सिर्फ इसी को सिलेक्ट करने के लिए हम लोगों ने, उनके पेशेंस को सिलेक्ट करने के लिए 10-11 बजे बच्चों को बुला के हमने 4 बजे इंटरव्यू लिया कि देखें कि वो कितना पेशेंस है, अगर वो कितना देर सह पाते हैं या नहीं सह पाते हैं। इसलिए अगर आपको किसी टाइम पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है एंड आपको इंतजार कराया जा रहा है 2 घंटा 3 घंटा जाएंगे, तो इम्पेशेंट मत होइए, कूल रहिए, कंपोज रहिए और रिलैक्स रहिए। एक चीज और, कभी भी इंटरव्यू वाले दिन बहुत हेवी लंच या हेवी ब्रेकफास्ट करके नहीं जाए, या बहुत ज्यादा बॉटल पानी पी नहीं पी लें। अदरवाइज अगर आपका पेट अपसेट हो जाएगा या कंटिन्यूस आपको वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ेगी और उसी टाइम आपका कॉल आ गया तो वो नेगेटिव हो सकता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ इसी पॉइंट पे कि व्हेन आई वाज इन महिंद्रा, आई वाज एट नासिक। तो एक सीनियर पोजीशन के लिए हमने हायर किया बंदा को और ही वाज वेरी गुड, वेरी कॉम्पिटेंट। हमने उसका सिलेक्शन कर लिया, देन टेक्निकल फंक्शनल हेड केम, ही आल्सो सिलेक्टेड, फाइनली वी गॉट सिलेक्टेड एंड वी फॉर द फाइनल राउंड वी सेंट हिम टू मुंबई फॉर द फाइनल राउंड विद द वाइस प्रेसिडेंट एचआर एंड ही रिजेक्टेड दैट पर्सन। तो आई कॉल्ड हिम कि सर वो तो बहुत अच्छा बंदा था सर, आपने क्यों उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उनका आंसर था कि उसके दांत मैंने गुटके का वो देख लिया था।
दाना देख लिया था उसके दांत में, ही वाज स्पीकिंग, आई सॉ वो गुटखा का वो। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपकी सारी मेहनत, सारा कॉम्पिटेंस, सारा कुछ एक छोटे से गलती की वजह से आपका वो खत्म हो गया। इसलिए ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप पान भी खाते हैं या गुटखा खाते हैं, जो भी खाते हैं, एटलीस्ट वो सारी चीज़ें आपको उस वक्त इंटरव्यू में से बच के रहना चाहिए। ये बहुत ही नेगेटिव होता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, ये आपका बिफोर इंटरव्यू था। अब आप ड्यूरिंग इंटरव्यू क्या करें? जब आप, व्हेन यू आर एंटरिंग, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। आप मॉक इंटरव्यूज जो मैंने बोला वो करें दोस्तों के साथ। आप हमेशा जब व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द इंटरव्यू रूम, ग्रीट द पैनल विद कॉन्फिडेंस एंड स्माइल। बहुत से लोग डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं और नर्वस रहते हैं। कभी कभी वो एंट्री पॉइंट पर जब उनका वो चौखट से ही ठोकर लग जाता है। ये सर बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यू विल नॉट गेट सेलेक्टेड, इससे ज़्यादा तो किसी के हाथ में कुछ है नहीं। तो बी कॉन्फिडेंट, हैव अ स्माइलिंग फेस एंड एंटर इनटू द रूम। अच्छा, दूसरी गलतियां बहुत हम ये करते हैं, स्पेशली मैंने फ्रेशर्स में देखा है, जो हो सकता है कि वो इंटरनेट से वो लोग सीखते हों या उनको कोई, डोंट, आप अपना हाथ कभी नहीं बढ़ाएं शेक हैंड के लिए। पहले अगर सामने इंटरव्यूअर आपसे हाथ बढ़ा के मिलाने की कोशिश करता है या बढ़ाता है, तो जरूर शेक हैंड करें। अपनी तरफ से हाथ बढ़ा के शेक हैंड करने की जरूरत नहीं है। इसको बहुत पॉजिटिव नहीं लिया जाता है बहुत जगह पे। इसलिए आप इंटर करें स्माइल के साथ, खड़े हों, सामने विश करें, खड़े हों। आपको बैठने को जब बोला जाए, आप सीट पे बैठें, ठीक है। और बैठे भी ऐसे कि ऐसा नहीं कि चेयर को पीछे कस के धक्का दिया, तो वो सारी चीजें, ये ऑब्वियसली ये सारी चीजें हमको प्रैक्टिस से आएंगी, लेकिन धीरे से चेयर पीछे किया और फिर उस पर बैठ गए। रेस्टलेसनेस कभी भी अपने आप की, मैं बहुत नीडू हूँ जॉब के लिए, ये कभी भी आपके ड्यूरिंग द इंटरव्यू शो नहीं होना चाहिए। आई हैव सीन पीपल वीपिंग इन द इंटरव्यू रूम कि बॉस, मुझे सर, मुझे बहुत ज़रूरत है इस इंटरव्यू की, मेरे ये है, मैं इतने दिन से बेकार हूँ, दिस एंड दैट। द ऑर्गेनाइजेशन हु इज टेकिंग इंटरव्यू वहाँ पे चैरिटी करने नहीं बैठी हुई है, वो कॉम्पिटेंस का सिलेक्शन करने के लिए, एटीट्यूड का सिलेक्शन करने के लिए बैठी हुई है। तो आपके, आपकी मजबूरी, आपकी परेशानी से उनको कोई सरोकार नहीं होगा। अगर आप कॉम्पिटेंट होंगे तभी वो ऑर्गेनाइजेशन आपको लेगा। बी पोलाइट टू द पैनल। हमेशा पैनल जो है उसके साथ स्मूथली, बहुत ही कूल और बहुत ही पोलाइटली बात कीजिए। इवन इफ यू आर एरोगेंट इन योर ओन लाइफ, इंटरव्यू में कभी भी एरोगेंसी मत शो कीजिए। बी पोलाइट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। वॉच योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत क्रिटिकल होता है। अगर आप सीनियर लेवल पे हैं तो आपने अक्सर देखा होगा, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि जब वो कैंपस इंटरव्यू करते हैं तो एक वो साइकोलॉजिस्ट को किनारे बैठा के रखते हैं, एंड दैट साइकोलॉजिस्ट इज बेसिकली वाचिंग योर बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। आप अपनी उंगलियां तोड़ रहे हैं बैठे हुए, आप बटन खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, या पेन को हिला रहे हैं, या और जो टैपिंग योर चेयर और जो ले, ये सब नेगेटिव प्रैक्टिसेस हैं एज फार एज बॉडी लैंग्वेज इज कंसर्न। कूल, काम, कॉन्फिडेंट, बैठे बैठे हुए हैं आप, दोनों हाथ आपके सामने हो, और बहुत कामली कूलली जवाब दीजिए। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही क्रिटिकल है। बहुत से लोगों का रिजेक्शन बिकॉज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, या फिर बहुत से लोगों को देखा गया है कि चेयर पे आगे की तरफ सतर के आप बैक पीछे वो हो जाते हैं। दैट मीन्स एज इफ यू आर नॉट टेकिंग द इंटरव्यू वेरी सीरियसली। ये सब नेगेटिव है। बॉडी लैंग्वेज पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। बॉडी लैंग्वेज का प्रैक्टिस कीजिए और कूलली कामली रिस्पॉन्ड कीजिए। वॉच योर लैंग्वेज, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वट एवर लैंग्वेज दे आर आस्किंग इन क्वेश्चन, यू रिस्पॉन्ड इन द सेम लैंग्वेज। कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो इंग्लिश में जवाब दें, हिंदी में पूछ रहे हैं तो हिंदी में जवाब दें, या फिर मिक्स जवाब दें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डोंट बीट अराउंड द बुश। एक बात तो तय है कि जो बंदा आपका सामने इंटरव्यू ले रहा है, द इंटरव्यूअर ही इज टेकिंग योर इंटरव्यू, ही इज मोर नॉलेजेबल, मोर स्मार्ट देन यू। कभी भी उसको इधर उधर घुमाने की कोशिश मत करें। अगर आपको आंसर पता है, आंसर दें, नहीं पता है तो क्लियरली बोलेंगे सर मुझे पता नहीं है, सॉरी। लेकिन आप अगर उसको इधर उधर घुमाएंगे, दैट मीन्स ही इज अवेयर दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ द आंसर, यू आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अभी आप इंटरव्यू की मिड ऑफ द इंटरव्यू में हैं और अपने आप एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं कि सर अगर द कंपनी विल गिव मी दिस मच देन आई विल ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, दिस एंड दैट। पहले आप इंटरव्यू पूरा दें, अपने कॉम्पिटेंस को शो करें,
और जब आप अपनी कॉम्पिटेंस को शो करेंगे सामने आपका इंटरव्यू और आपको देखेगा कि बंदा हाँ कॉम्पिटेंट है, स्किलफुल है, बंदे में नॉलेज है, ये मेरे लिए बेस्ट होगा, तो आप तब आप वो आपको जब लगेगा कि हाँ यू आर रिस्पॉन्डिंग इन द राइट वे, यू आर गोइंग इन द राइट वे, तब आप अगर जरूरत है तो आप एक्सपेक्टेशन अपने बता सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली एक्सपेक्टेशन लोग बोलते हैं कि सर अगर आई बिलोंग टू सच एंड सच प्लेस, इफ यू कैन जस्ट रिक्रूट मी फॉर दैट लोकेशन। आप अगर शुरू में ही आप ये बता देंगे सर मेरी फैमिली रीजंस हैं, वांट टू बी एट दैट लोकेशन, सो कैन जस्ट टेक मी फॉर दैट लोकेशन, तो कभी आपको नहीं लेंगे। लेकिन जब आप अपना कॉम्पिटेंस शो कर देंगे कि हाँ आप कंपनी के लिए एसेट होंगे, तब आप अपना एक्सपेक्टेशन वेदर इट इज सैलरी वेदर इट इज लोकेशन वो आप अगर बताएंगे तो वो शायद आपको कंसिडर कर सकते हैं। अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की प्रैक्टिस जरूर कर लें। ये दो तीन ऐसे कॉमन चीजें हैं जो कि नॉर्मली एट ऑल लेवल पीपल इंटरव्यू आस्क क्वेश्चन। एक तो जैसे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आई एम श्योर बहुत बेसिक क्वेश्चन है वो आप लोग दे सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का प्रैक्टिस जरूर कर लें। स्ट्रेंथ के बारे में तो लोग बहुत, लेकिन वीकनेसेस के बारे में बहुत से क्वेश्चन होते हैं। वीकनेस अगर कोई पूछे तो वीकनेस का रिस्पॉन्ड कैसे करें। आपकी वीकनेस का रिस्पॉन्स भी ऐसा होना चाहिए ताकि एट द एंड ऑफ द डे सामने वाले को लगे कि यहाँ इट इज ऑल्सो एन स्ट्रेंथ। अब आप वीकनेस ये नहीं बोल सकते हैं सर आई हैव अ वीकनेस ऑफ स्लीपिंग इन द ऑफिस, तो वो कभी बंदा आपको नहीं लेगा वहाँ। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि सर आई गेट इरिटेटेड व्हेन द थिंग्स आर नॉट गेटिंग कंप्लीटेड ऑन टाइम, अगर वक्त मेरा काम कंप्लीट नहीं होता है तो मैं थोड़ा इरिटेट हो जाता हूँ, तो इट शोज दैट यू गेट इरिटेटेड, बट यू गेट इरिटेटेड बिकॉज योर थिंग्स आर नॉट गेटिंग कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको प्रैक्टिस करें कि अपनी वीकनेसेस आप क्या लिख रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ क्या लिख रहे हैं, आप किस चीज की प्रैक्टिस कर। ऐसा नहीं कि आप सोच के कुछ आ रहे हैं वहां पे आप फंबल कर रहे हैं, याद नहीं आ रहा, सॉरी सर आई डोंट हैव एनी वीकनेस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंदे में वीकनेस नहीं हो। तो आप अब इस चीज का भी प्रैक्टिस करें कि आपकी वीकनेस क्या है, आप उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, और वीकनेस भी ऐसा शो करें कि वो बाद में आपको लगे कि हाँ इट गिव्स द साइन ऑफ स्ट्रेंथ। कभी भी इंटरव्यूअर के साथ जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं अपने प्रीवियस फॉर्मर एम्प्लॉयर को बुरा भला कभी नहीं बोलिए, क्योंकि आज आप अगर अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर को बुरा भला बोलेंगे तो ये सामने वाले को ये फीलिंग जाएगा कि कल को मेरे ऑर्गेनाइजेशन को जब छोड़ के जाएगा तो यहाँ के बारे में भी वो गलत बात बोलेगा। और ऐसा भी अक्सर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो कभी भी, और इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, आप कभी भी किसी एम्प्लॉयर को इवन इफ यू आर नॉट इन अ वेरी गुड टेस्ट विद द एम्प्लॉयर, डोंट टेल बैड थिंग्स अबाउट द एम्प्लॉयर। आप उससे पूछ सकता है कि देन व्हाई डू यू वांट टू लीव, तो एवरीबॉडी वांट्स करियर ग्रोथ, आप करियर ग्रोथ के लिए जा रहे हैं, आप बेटर ऑप्शन के लिए जा रहे हैं, ये जवाब आप दे सकते हैं। लेकिन कभी भी फॉर्मर एम्प्लॉय के बारे में बुरी बात ड्यूरिंग द इंटरव्यू नहीं बोले। अगर अक्सर ही ऐसा देखा गया है कि व्हेन यू आर बीइंग आस्क्ड डू यू हैव एनी क्वेश्चन, लास्ट में पूछते हैं डू यू हैव एनी क्वेश्चन और यू वांट टू आस्क एनीथिंग, तो नॉर्मली लोग बोल देते हैं सॉरी सर आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। आप प्लीज क्वेश्चन पूछें, आप जरूर पूछें, रेलेवेंट क्वेश्चन पूछें। एक दो क्वेश्चन मुझे, यस सर आई हैव अ क्वेश्चन, सर व्हाट विल बी माय रोल, हाउ मेनी पीपल विल बी रिपोर्टिंग टू मी, मुझे कितने लोग रिपोर्ट करेंगे, या फिर अगर इस पोजीशन को कितने बंदे रिपोर्ट करेंगे, इसका क्रिटिकल जेडी के जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, या इस पोजीशन के कितने कस्टमर बेस होंगे, या इस पोजीशन का रिटेलर कितने कितने नंबर ऑफ रिटेलर्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर कितने होंगे यहाँ पे। कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अगर आप से पूछा जाता है कि यू हैव एनी क्वेश्चन बिफोर लिविंग द इंटरव्यू। थैंक्स टू द पैनल अगेन, अक्सर ऐसा दिखाया गया कि एट द टाइम ऑफ लिविंग द पैनल इंटरव्यू आप फिर शेक हैंड के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो नॉर्मली इन इंडियन एनवायरनमेंट बहुत जगह पे ये अच्छे टोन में नहीं लिया जाता है शेकिंग हैंड। सो जस्ट थैंक द पैनल, गो टू स्टेप बैक एंड देन दरवाजे की तरफ हम मुड़े। आप जहां खड़े हैं वहीं से मुड़ के कोशिश कीजिए कि ना जाएं, 2 स्टेप बैक आए, देन मूव टुवर्ड्स द डोर, और उसके बाद आप बाहर निकलें विद अ स्माइलिंग, अगेन विद अ स्माइलिंग फेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक टिप्स। ये इंटरव्यू नॉर्मली आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप मॉक इंटरव्यूज का प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, थैंक्स। एनी क्वेश्चन एनीबॉडी इज हैविंग? Now we would take the questions. So those who want to ask the question, they can raise their hands or type their question in the chat box. The question is कि अगर ये पूछे कि एम्प्लॉयर ये पूछे कि आपने पहले वाला जॉब क्यों लेफ्ट कर दिया, क्यों लेफ्ट कर दिया, या आप इंटरव्यू में रहते हुए आप दूसरी जगह पर इंटरव्यू दिया, देखिए देयर आर नंबर ऑफ रीजंस, आप कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। आप
आप जब आपसे ये पूछा जाए कि क्यों गए तो आप बोल सकते हैं। बहुत से नॉर्मली होता है कि आपको वहाँ का लोकेशन सूट नहीं किया और आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा था, देन बिकॉज ऑफ दैट यू हैव ऑप्टेड फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास कोई इसका कोई रेडीमेड आंसर नहीं है, बट आपके साथ जो सच्चाई है वो आप अगेन ऐसे हालात में अक्सर ऐसा होता है कि लोग नेगेटिव बोल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सर वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा नहीं था, एम्प्लॉयर अच्छा नहीं था, सैलरी टाइम पे नहीं मिलती थी, ये सारी चीजें। प्लीज डोंट टेल ऑल दिस थिंग्स। ये बहुत सा ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। आप जहाँ जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, उसमें भी जरूरी नहीं कि हर चीज 100% परफेक्ट हो। तो यू टेल द राइट रीजन, सर बिकॉज ऑफ द कैरियर ग्रोथ मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, या क्योंकि आपके यहाँ का लोकेशन जो था दैट इज मोर क्लोजर क्लोजर टू माई होम टाउन। बहुत सी चीज़ें आप हो सकती हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि हेल्थ वाइज आई वॉज नॉट कंफर्टेबल एट दैट लोकेशन, ये आप बोल सकते हैं, लेकिन डोंट टेल अबाउट द नेगेटिव नेगेटिव थिंग्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। Thank you, sir. And next question is from Tawfiq. He has completed his master's in engineering in 2018, and after that, he has started preparing for government job exams. Now he is still a fresher after 3 years. So, how to clarify this 3 years gap? ये 3 इयर्स जो भी गैप है, 1 साल 2 साल 3 साल का जो गैप है, ये आप अक्सर लोग ऐसा होता है कि उसमें जो मैंने एक वर्ड यूज किया था, बीटिंग अराउंड द बुश। आप प्लीज सामने वाला जो बंदा है वो इंटरव्यू जो आपका ले रहा है, दे आर स्मार्ट इनफ टू नो दैट आप पिछले 3 साल से जॉब में नहीं थे, लेकिन ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। इवन आप अपना शॉप खोला आपने, या आप इंटरप्रेन्योरशिप में हैं, या यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, आप बिल्कुल वो शेयर कीजिए सामने वाले से कि व्हाट यू आर डूइंग इन दोज 3 डेज 3 इयर्स। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन हाँ नेगेटिव क्या होता है मैं आपको बताऊं कि in my previous organization, when I was taking an interview of a candidate, he was jobless for 7 years. When I asked कि क्या कर रहे थे for 7 years, he told that he was preparing for the competitive exams. आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 1 साल प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये गैप ले सकते हैं, 2 साल का गैप ले सकते हैं, बट फॉर 7 इयर्स यू मस्ट हैव अ जेन्युइन आंसर। फॉर 3 इयर्स यू मस्ट हैव डन समथिंग। आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से आपको बिकॉज ऑफ सिचुएशन यू आर नॉट इन जॉब, you tell the interviewer you are not in job for 3 years, you could not find the right person, or you set for the sit on the interview, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, but during these 3 years you updated yourself, you got an additional qualification, or you have started your own venture, you work for your own venture in these 2-3 years। लेकिन अगर आप उनको ये पता चलेगा you are sitting idle for 3 years and doing nothing, then this will be negative for you। One question is, sir, what are the type of weakness? Please, some best example. देखिए वीकनेस अगेन, ये स्ट्रेंथ हो या वीकनेस का कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको एक टिप ये दिया कि वीकनेस ऐसा होना चाहिए कि वीकनेस आपका एट द एंड ऑफ द डे ये आपको स्ट्रेंथ लगे, या फिर ये लगे कि हाँ ठीक है, ये दिस वीकनेस इज नॉट गोइंग टू हैम्पर द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर ये बोल देते हैं आई सर आई माई वीकनेस इज टू टेक ब्राइब, तो ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गोइंग टू टेक यू ना। आपकी वीकनेस भी ऐसा हो, आई टोल्ड दैट आप इरिटेट हो जाते हैं, या फिर आप कभी कभी ये हो सकते हैं कि आप बहुत ही टास्क ओरिएंटेड हैं, तो टास्क ओरिएंटेड होने की वजह से समटाइम्स यू हैव फाइट विथ योर सीनियर्स, तो दिस इज नेगेटिव, बट एटलीस्ट दिस शोज दैट यू आर टास्क टास्क ओरिएंटेड। तो कुछ ऐसा आप अपने नेगेटिव बताओ, बट आप ये बोल सकते हैं आई एम वर्किंग ऑन दैट, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, बट दिस इज माई वीकनेस। कुछ वीकनेस कभी भी ऐसा नहीं हो जो सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाए। Sir, another question is from Tawfiq that क्या दाढ़ी इंटरव्यू को अफेक्ट कर सकती है? बियर्ड सर, नॉट एबल टू हियर यू। क्या दाढ़ी इंटरव्यू को अफेक्ट कर सकती है? बियर्ड ही इज आस्किंग। सर्टेनली नॉट, आई हैव द बियर्ड फॉर द लास्ट 12-13 इयर्स, मुझे तो कहीं पे नहीं लगा ऐसा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए आपको एक चीज और बताऊं मैं, ये सारी चीजें जो है ना, ये आपके दिमाग का ये है कि मैं बायस्ड हैं, या मैं वहाँ पे इंटरव्यू क्रैक इसलिए नहीं कर पाया कि दे वर लुकिंग फॉर समबडी एल्स, और हम जैसे लोगों का जगह नहीं। देखिए हर जगह बायसनेस अनबायसनेस चलता है, हर जगह आपका ब्लू आइड बॉयज होते हैं, हर जगह आपको पसंदीदा लोग होते हैं। व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, आप बहुत से उसमें
ऑन एन एवरेज ये मान के चलते हैं कि 10% लोग जो होते हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं रेफरेंसेस से आए होते हैं, तो ये आपको हर जगह मिलेगा। तो ये सारी चीजें एक्सक्यूज नहीं हो। दाढ़ी दाढ़ी इज नॉट एट ऑल एक्सक्यूज। वो कभी दाढ़ी कहीं पर इज नॉट गोइंग टू हैम्पर, कभी वैसा नहीं है। मैं आई हैव टेकन इंटरव्यू लॉट मेनी पीपल, आई हैव सेलेक्टेड लॉट मेनी पीपल जो कि जिनके पास जिनकी दाढ़ियां थी, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैम्पर। हाँ, ओनली थिंग इज दैट यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट एनफ। अगर आपने दाढ़ी रखी है तो यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट एनफ कि इट इज नॉट गोइंग टू हैम्पर यू। आप अगर दाढ़ी रख के और अपने आप में शाई रहेंगे कि मैंने कोई गलती कर दी है, कि ऐसा नहीं कि इट इज गोइंग टू हैम्पर मी, ये नुकसान मुझे पहुंचाने वाला इंटरव्यू में, तो आपका खुद अपने आप रिजेक्शन पर साइन कर रहे हैं। दाढ़ी इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू नेगेटिव, नेवर। Any other questions? Anyone? So one question is from Shabazz that he is now working in finance firm and he want to switch to sales. So how to reply why you are switching the field? देखिए, मैं इस चीज़ को कभी भी बहुत सजेस्ट नहीं करता हूँ कि एट द इनिशियल स्टेज आप स्विच कीजिए अपने फंक्शन को। इफ़ यू आर इन सेल्स स्विचिंग टू फाइनेंस, इफ यू आर फाइनेंस स्विचिंग टू सेल्स, ये तब ठीक है इन योर कैरियर व्हेन यू आर एट अ सीनियर लेवल। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर हेडिंग फाइनेंस एंड यू आर बीइंग आस्क्ड टू हैंडल एचआर, इफ यू आर बीइंग आस्क्ड टू हैंडल कस्टमर केयर, फाइनेंस, तो ये डिफरेंट फंक्शन अगर हैंडल करने को बोलता है दैट इज गुड। लेकिन फॉर एग्जांपल कि आप प्रोफेशनली आप क्वालिफाइड हैं सेल्स के लिए, यू आर एमबीए इन सेल्स और बीबीए इन सेल्स, एक साल आपने सेल्स में काम किया है, दूसरे साल आप फाइनेंस में चले गए, तीसरे साल आप कस्टमर केयर में चले गए, चौथे साल आप अगर फिर सेल्स में आना चाहेंगे तो यू विल बी ए वेरी फ्रेशर टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो बंदा आपको एक साल, दो यू आर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 4 years, लेकिन वो आपको लेने के बजाय वो बंदे को क्यों नहीं लेगा जो 3 साल टोटली सेल्स में काम किया हुआ हो। तो इसलिए इट इज गोइंग टू हैम्पर यू इफ यू आर स्विचिंग योर फंक्शन। अगर आप सेल्स में हैं तो ट्राई टू बी इन सेल्स एटलीस्ट फॉर 5, 7, 8 years। अगर आप फिनांस में हैं तो फिनांस में रहें। एट मिडिल लेवल पे जाने के बाद अगर आप स्विच करते हैं फंक्शन, तब क्या होगा कि तब आपका क्रॉस फंक्शनल एक्सपर्टाइज जो है दैट इज गोइंग टू ऐड वैल्यू टू योर प्रोफाइल। लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेज पे व्हेन यू आर अ फ्रेशर और 1 or 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड यू आर स्विचिंग टू फंक्शन, इट इज गोइंग टू हैम्पर योर कैरियर। We are taking the last question. It is from that if interviewer asks what are your expectations from this job? हाँ, नॉर्मली ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन। सो आप ये कह सकते हैं, नेवर टेल एक्सपेक्टेशन अबाउट द सैलरी, बिकॉज आप वो देंगे वही जो कि आप वो उनके ब्रैकेट में पड़ता है। लेकिन आप ये बोले कि सर आई एम अ टीम प्लेयर एंड आई एम श्योर एंड आई विल बी ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, आई विल जेल विद द ऑर्गेनाइजेशन, आई विल वर्क एज अ टीम प्लेयर। आप एक्सपेक्टेशन ये बोल सकते हैं कि आई एम श्योर यू आर अ गुड एम्प्लॉयर, आप एक अच्छे एम्प्लॉयर हैं, मैं भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस ब्रांड के साथ काम करके मैं भी प्राउड फील करूंगा। ये सारी चीज बोल सकते हैं। लेकिन आपके, हाँ, स्पेसिफिकली इफ दे आर आस्किंग योर एक्सपेक्टेशन इन सैलरी, then you tell your expectation about salary. If they are asking you about your designation in expectation, then tell the expectation about your designation. But if you are asking the normal expectation from the organization, then don't tell about the salary expectation, don't tell about the designation expectation and all. ये सारी चीजें तब फिर भी ठीक है when you are at a senior level, when you are giving interview for middle level management or senior level management, then you can discuss the salary part during the interview or designation part during the interview. लेकिन when आप अगर इनिशियल जूनियर लेवल पे हैं या फ्रेशर हैं और वो आपसे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्टेशन के बारे में पूछें, तो डोंट टेल अबाउट द सैलरी और योर डेजिग्नेशन। Thank you, sir. So as there are no more questions related for the today's topic, so we will be going to end the session now. Thank you once again, Shahid Masood sir, for your wonderful session. And Thank you very much. hope your information will be helpful for the tomorrow interview to the candidates. Inshallah, we will continue this type of sessions in the future also. Thank you once again, and thank you all the participants for being here. Thank you. Thank you.